Hello students, today's topic is morphology of flowering plants. So in this portion of the syllabus we will study about the external features of a plant like root, stem, leaf, flower, fruit, seed and the different types of a typical flowering plant. All these we will study in this chapter. Actually morphology means what? External features. इसका मतलब है बाहरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बाहर से जो भी हम लोगों को दिखता है ऐसा वाला फीचर्स का नाम क्या है? मॉर्फोलॉजी. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट्स एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर. फ्लावरिंग प्लांट्स में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो कि हमने टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म में अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा था. लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स तीनों ही अच्छी तरीके से ही प्रेजेंट होता है. दे आर ऑल प्रेजेंट, रूट, स्टेम एंड लीव्स. ओके, सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द रूट्स. नाउ एज यू ऑल नो, इन अ सीडलिंग जो छोटे से पौधे बीज से उगते हैं, दाने से, सो दैट कंटेन्स वॉट? रेडिकल एंड प्लूमेल. And the radicle of the seedling grows into root and which goes inside the soil, which we cannot see. Okay, so root is developed from where? From the radicle of the seedling. The roots are of different types, like primary roots which grow inside the soil, then secondary roots, then tertiary roots. So primary roots and its branches will make up what? The taproot system. Primary root, secondary root, tertiary root. This all together with the branches will be making what? Primary root system or taproot system. Then we have the fibrous root system. The fibrous root system will be present in the monocot plants. Okay, so and they will be here like the main root will be absent, the primary root will be absent in the fibrous root system. Okay, so we have taproot system which is primary roots and its branches, then fibrous root where primary root is absent. Instead of that we have a large number of small roots that is present, and then we have the adventitious roots like in the banyan and the grass. Okay, adventitious roots does not arise from the radicle, they will arise from any other place. Radicle से नहीं होता है, कुछ दूसरा पार्ट से होता है. So these are called what? Adventitious roots, जैसे banyan में, grass में देखा जाता है. Next we come to the functions. Functions of the root are, as you all know, absorption of water, पानी खींचता है, minerals, synthesis of plant, growth regulators, anchorage मतलब एकदम पूरा soil को tight करके रखता है, and store food also. तो roots क्या करता है? खाना भी स्टोर कर सकता है ना. जो रूट्स हम लोग खाते हैं जैसे कैरट, उसमें खाना स्टोर किया होता है कि नहीं? सो दे कैन स्टोर फूड ऑल्सो. सो फंक्शंस ऑफ द रूट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, एंकरेज और स्टोरिंग फूड. We come to the regions of the root. What are the different parts of the root? We have the lowermost part which is like a cap called the root cap. Then the next part is the region of meristematic activity. Then the next part is the region of elongation, then region of maturation and the root hairs region. So I will show you from the book the picture that will depict the region of the root. So as you can see here, this is the root cap. यहाँ पर root cap है, उसके ऊपर का हिस्सा है region of meristematic activity, then the region of elongation and then the region of maturation. रूट कैप ढकने के लिए, फिर डिवीजन के लिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर इलोंगेशन थोड़ा बढ़ेगा तो इलोंगेशन रीजन, एंड दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन और दिस आर द रूट हेयर्स. तो ये रीजन्स जो यहाँ पर दिया गया है, दिस आर द रीजन्स ऑफ द रूट टिप. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में क्या है? रूट्स स्टोरेज, सपोर्ट, रेस्पिरेशन है ना. मॉडिफिकेशन मतलब रूट्स क्यों बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद मॉडिफाई होके अपने आप को चेंज करा के क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, रेस्पिरेशन के रूट्स काम आता है. जैसे कि प्रॉप रूट्स, सपोर्ट के लिए बैनियन ट्री में आप लोग देखोगे कि बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो है, देखा होगा आप सभी ने कि there are hanging roots to support the banyan tree. ऊपर से जो मतलब
स्टेम्स होते हैं उससे रूट्स निकलते हुए दिखाई देता है। दिस आर द प्रॉप रूट्स। मेज के लिए क्या है? स्टील्ड रूट्स। ठीक है, अब मेज में क्या होगा? प्लांट्स को सपोर्ट देने के लिए लोअर पोर्शन, स्टेम का नीचे का पोर्शन से रूट्स निकल के आता है मेज में, मकई में। एंड न्यूमैटोफोर्स इन राइजोपोरा, जो मिट्टी से ऊपर उठ जाता है वर्टिकली अपवर्ड्स, सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए मिट्टी से ऊपर उठ जाता है रूट्स इन राइजोपोरा। तो दिस आर ऑल मॉडिफिकेशंस। रूट्स अपने आप को बदल के अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टेम। दिस इज द असेंडिंग पार्ट। यू ऑल नो असेंडिंग पार्ट मीन्स ऊपर उठने वाला। These are the branches, these will have leaves, this will have flowers, this will have fruits. स्टेम में ही सब कुछ होता है। ये ऊपर की तरफ जाता है, धूप की तरफ, और इसमें ब्रांचेस भी है, लीव्स भी है, फ्लावर्स, फ्रूट, सब कुछ है। सो कौन सा पार्ट सीडलिंग का जो स्टेम में डेवलप होगा? प्ल्यूम्यूल। नोड्स एंड इंटर नोड्स विल बी देयर प्रेजेंट इन द स्टेम। बड भी रहता है जिससे फूल होते हैं। ठीक है, और फंक्शन क्या है? दिस विल कंडक्ट मिनरल एंड फूड। दिस विल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड सपोर्ट। स्टेम भी फूड स्टोर कर सकता है और सपोर्ट भी दे सकता है। ओके, सो दिस गोज अप, दिस हैव ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, मालूम है आपको। और नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होता है। नोड्स वो जगह है जहाँ से लीव्स जन्म लेता है। दोनों नोड्स का बीच का जगह का नाम क्या है? इंटरनोड्स। देयर आर बर्ड्स ऑल्सो विच डेवलप इनटू फ्लावर। कंडक्ट्स मिनरल्स एंड फूड ऑल्सो। दे विल हेल्प इन स्टोरेज एंड सपोर्ट। लीव्स अपने आप को बदल सकता है, जैसे रूट्स बदला है अपने आप को, तो लीव्स भी बदल सकता है और मॉडिफाई होके अपने आप को बदल के क्या कर सकता है? स्टोरेज कर सकता है, जैसे पोटैटो, जिंजर है, टर्मेरिक है, जामीन खांड है। स्टेम्स भी अपने आप को कर सकता है। स्टेम टेंड्रिल है। ये जैसे स्टेम अगर कोई सीधा खड़ा नहीं हो सकता हो तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो वायर लाइक जो दिखता है दैट इज द टेंड्रिल, उससे वो सपोर्ट लेके खड़ा हो जाएगा। फिर कांटे हैं, थॉर्न्स इन द बोगनविलिया। कभी कभी स्टेम्स जो है फ्लैट हो जाते हैं, जैसे कैक्टस में आप लोगों ने देखा होगा, कैक्टस का स्टेम ऐसा है, फ्लैटेंड है, और उसके ऊपर कांटे हैं, ऐसा है ना। तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो फॉर्म बाय व्हाट? द स्टेम्स, राइट। सो दीज आर ऑल व्हाट? ये क्या है? सब मॉडिफिकेशंस। फिर है लीव्स। आप लोगों को मालूम है पत्ता है ना, लीफ। सो ये कहाँ उगते हैं? स्टेम में। एक जगह होता है नोड, ठीक है, और नोड से वो पत्ता उगेगा। जैसे कि अगर ये स्टेम है तो यहाँ से अगर पत्ता उग रहा है, सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द नोड, राइट। सो अब नोड से पत्ते उगेंगे, एंड ऑल्सो दे विल बी आर अ बर्ड, दैट इज पंखुड़ी, जिससे फूल खिलते हैं। एंड देयर इज एक्सिलरी बर्ड विच डेवलप्स इनटू ब्रांच। ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ? लीफ का पार्ट क्या है? जैसे लीफ बेस होता है, पिटियोल है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में नीचे का हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ होता है विच इज कॉल्ड पाल्वेनास, और वेन्स एंड वेनलेट्स भी दिखाई देता है। नाउ आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ फ्रॉम द बुक। As you can see here, this is the leaf and this portion is the lamina or the leaf blade. पूरा जो पत्ते का हिस्सा होता है ना, ऐसा चौड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं? लैमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, अब नीचे की तरफ जा रहा है इसका जो स्टॉक है, दिस इज द स्पिटियोल, और ये छोटे छोटे जो पत्ते जैसे दिखते हैं, इस आर कॉल्ड द स्टिपियोल। यहाँ पर छोटा सा एक्सिलरी बर्ड होता है, और ये लीफ का बेस है। एकदम नीचे का पोर्शन जो है लीफ का बेस बोला जाता है। ठीक है, और लैमिने का दूसरा नाम क्या है? लीफ ब्लेड। और ये सब क्या दिखाई दे रहा है? वेन्स एंड वेनलेट्स, राइट, वेन्स एंड वेनलेट्स। ओके, सो यहाँ पर देखो जो लीफ है इसका वेन्स देखो, ऐसा ऐसा मिड रिब ऐसा, और यहाँ वेन्स दिखाई दे रहा है, वेनलेट्स, छोटे छोटे ब्रांचेस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज रेटिक्यूलेट वेनेशन, नेटवर्क जैसा। और यहाँ देखो मिड रिब लंबा सा, और लंबे लाइंस दिखाई दे रहे हैं वेन्स का, पैरेलल जा रहे हैं सब लोग, कोई नेटवर्क नहीं है। दिस इज पैरेलल वेनेशन। लिप्स का वेनेशन है, वेन्स का अरेंजमेंट है ना। तो दिस आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेन्स एंड वेनलेट्स। यहाँ पर भी है, ये पैरेलल है, ये रेटिक्यूलेट है, ये डाइकोट में मिलता है, ये मोनोकॉट में मिलता है।
नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ लीव्स. अब टाइप्स ऑफ लीव्स में क्या क्या है? सिंपल लीव्स एंड कॉम्पाउंड लीव्स. ओके, सो वी हैव सिंपल लीव्स जिसमें एक ही लीव दिखाई देता है, और कंपाउंड लीफ में दो टाइप है, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड. ओके, पिनेटली कंपाउंड में नंबर ऑफ लीव्स है इन द कॉमन एक्सिस. जैसे मैं ड्राइंग करके दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, ऐसा, और उसके साथ ऐसे लीफलेट्स. दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड लीफ, राइट. अब पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होगा? पत्ते ऐसे दिखते हैं, बीच में अटैच्ड हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे वाले पत्ते को पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं. पाम जैसा, हाथ के जो पाम होते हैं ना, ऐसे फैला हुआ दिखाई देते हैं, इसलिए पामेटली कंपाउंड लीफ. लीफलेट्स आर अटैच्ड टू ए कॉमन पॉइंट. ठीक है, सो पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ. नेक्स्ट वी कम टू फाइलो. फाइलोटैक्सी में हम लोग देख सकते हैं, दिस आर द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच. लीव्स कैसे अरेंज्ड है इन द स्टेम और ब्रांच, उसको बोलते हैं क्या? फाइलोटैक्सी. सो 3 टाइप्स है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड. ऑल्टरनेट देखो, यहाँ पर एक है तो एक को एक नोट छोड़ के ऊपर एक इधर, फिर यहाँ छोड़ के इधर, और उसका एक हिस्सा छोड़ के ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप में ना इधर उधर करके ऑल्टरनेट मैनर में ये लीव्स है. सो दिस इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. ऑपोजिट में क्या होता है? एक ही जगह पर देखो, ऑपोजिट साइड में 2 है. ईच नोड ए पेयर ऑफ लीव्स अराइज. एक नोड में क्या है? एक पेयर लीफ अराइज हो रहा है. सो दिस इज व्हाट? ऑपोजिट. एंड दिस इज वर्ल्ड. जैसे गोल, मोर देन 2 लीव्स अराइज एट द नोड. एक नोड से बहुत सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? वर्ल्ड. दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. अल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड. ठीक है, तो इनका सब जो डायग्राम्स है और ये जो डेफिनेशन है ऑल्टरनेट कैसा है, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड, उनका एग्जाम्पल्स चाहिए होगा. ठीक है, तो ऑल्टरनेट क्या है? एज इन चाइना रोज या मास्टर या सनफ्लावर में आप लोग देखना कि ऑल्टरनेटली है, हर एक नोड में ऑल्टर करके दिया हुआ है. और एक ही नोड में अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में है, कैलोट्रोपिस में देखा जाएगा. और ये वर्ल्ड जो है ये एल्स्टोनिया में देखा जाता है, एक साथ बहुत सारे पत्ते एक ही जगह से खिलते हुए.